Hello, mic check 1 2 3 4. Hello, hello, hello. हेलो 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 टेस्ट 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 आवाज आ रहा है हेलो 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 इधर जाओ यहाँ से बात कर रहा हूँ आवाज आ रहा है आपल्याला प्रतीक्षा करायला प्रतीक्षा We have written it, but if I change करूँ मेरे को मेरे
हाँ कभी भी लग कैमरा ये लीड किसकी पड़ी है इसके ऊपर इस वजह ये नहीं 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 इसको बता नहीं ऑल टैप करके तीनों सेम ही दिख रहा है नहीं स्लाइड पर ये तो मैंने क्लिक किया ना वो इधर स्टार्ट करो Guys, hi. So let us start with today's session. With this, we start with HTML and CSS. So a brief introduction about the club. We have done so many past events which spans over a day. We are like a bit different than normal committees. Like we just don't do one-day sessions and we'll teach you, okay, this is a tech stack and you have to follow. So I will just tell you what are our past events. First was ML Study Jams. We collaborated with KJSIT GDSC to do this session. We did a different ML projects in that. After this, we completed one internship with Microsoft Reskill. In that, we built 4 projects in ML. There were 2 speakers from Microsoft and 2 speakers were our college seniors. So yeah, this was a brief introduction. So I will start with the goal. So at the end of this program, you guys will be able to build static pages with HTML, CSS, and JavaScript, which we will be delving before like directly jumping into Java because there are basic requirements of React.js. After this, we will dive into React.js, and there we will teach you how to make scalable dynamic projects using React.js. And at the end of the day, like at the end of the program, on the 5th day, we will teach you how to make your own personal portfolio website, which you can put on your resume. On that, you can show your skills as well. And we will also teach you how to deploy it on the using GitHub and Vercel. So, like first, I would like to is a framework which is built on JavaScript. If you see React files, they are at .jsx. So that .jsx file is not directly executable in the browser. That JSX file is converted into JavaScript first, and then it is executed in your browser. It was developed by a Facebook, and it was developed like because in pure JavaScript, you will see there are like some functions which make error at the like when you execute the program. Like if you want to store a state of website, like what I mean is if there is a form and you have to enter your name. So even though if you refresh the page, still you will see your name at the input fields. This problem Facebook has faced. That's why they developed React. So what React does is that it breaks your pages into different components, and those components are called when the page is like actually needed. If you are on a home page, it won't load your Java about page. When you are on about page, it won't load the components which are required for the home page. So basically, this was the introduction, and I would like to tell you what is the difference between a library and a framework. Library is basically like a pre-written code which developer can use to make their stuff on top of it, or you can use those functions to make use of it in your like how do I say this in your projects. Rather, what the framework is, it gives you a strict rules. It will tell you how to like if you want to take an image, let's say
In React, you can take it different three ways. And in Next.js, they have like set of rules if you want to import an image. They have a different library. You have to first import that library, and using that strict components, you can like import your image. After that, like why to learn React.js? So basically, there could be two objectives. First is there is like a very recent hype in the job market. There are like companies are offering very good packages in React, or you can use it to make UI. So basically, if you want to just make static pages, let's say if you want to make what do I say? Okay, let's. Uh, there is another objective two, which is like easy to manage data flow and build complex front end. What does this means is like if you go on a Flipkart and click on add to cart button, what happens is that it adds that particular item in your cart. It will add that in your recent search. It will add that in your past history, right? So on a one click, there are 415 components which are getting updated. If you try to make this using HTML and CSS, this is like very tough and near to impossible. That's why React is needed. If you just want to like make one static page which just displays some content, for example, Wikipedia, it just has text and few images, so it is more feasible to do it in HTML and CSS rather than using rather than complicating it. So when to learn JS? So after mastering HTML, CSS, and JavaScript, and here is a fun thing: if you go and ask anyone, what do you know in coding? There are 90% chances they will say I know HTML, I know CSS, and I know a bit of Python. So this Thurusa word is very scary. I remember like we were taking interviews for our code AI technical team, and there was this guy. He said he is intermediate in Python, so like we started asking him a general question. So have you made any projects? He said straight away. He said no. Okay, so there is any your work which you would like to show us? He straight away said no. So at the end, I guess Vedant asked him, "Have you heard about pandas?" And if you don't know pandas, it's like a very basic library. You need to like display anything and in your Jupyter notebook. For that also, he said no. So like Python intermediate has no idea about the pandas. So this Thurusa word is very scary. So let's quickly brush up HTML and CSS stuff so like we all could be on the same page. So yeah, this is basic agenda. So let's get started. So I would like to ask you, what do you guys know about HTML and CSS? Like maybe you can refer to this image. अच्छा ठीक है कोई बात नहीं. Okay, let's open VS Code. Do you guys have VS Code? VS Code है कि नहीं? VS Code और है VS Code sorry VS Code आता है हाँ हाँ हाँ. तो extension Live server Live server and pretty. Install.
If you guys don't have VS Code, you can use GitHub Devs. But first you will need GitHub account. So if you guys have VS Code open, just go to the extension section and install this extension. It says live server. It's optional if you want to like format your code. It will automatically format your code. This is completely optional, but I would advise you to install the live server. We are just waiting for people to like just set up their VS Code. Vedant? हाँ तो उसको बोल फाइल सेव करे और ब्राउजर में फाइल खोल और कंट्रोल एस जो फाइल खोलेगा ना उसको कंट्रोल एस करे और ब्राउजर में ड्रैग करके खुल जाएगा मतलब VS पैकेज खोल के विदाउट लाइव सर्वर कंट्रोल एस करके फाइल नहीं होगा हमने ड्रैग कर उसको ब्राउजर में ओपन ब्राउजर डायरेक्टली स्टार्ट ओपन टू ब्राउजर में Nice. So just open a file, name it anything, .html. It's up to you what you want to name. And as soon as you open this file, just press the exclamation mark. Yeah, so just press the exclamation mark and you will get this two options. Just simply press enter and you will get this code. There is a very fancy term for this code. We call it boilerplate code. I don't know why. So first there is a head tag. In the meta, it is basically for browser to like better optimize your page. And this is your page title. Let's say if I change this to welcome. And just you will see at the bottom there is a option of go live, or either you just right click and choose open with live server. Yeah, you see at the top this welcome is updated again. If I change this to document and go on this page. Oh yeah, if you don't have autosave service, just on it. Go to the settings. Again, you will see option of setting. Click it and simply type autosave. Autosave. And you'll see this files. By default, it is off. Okay, just change it to on Windows window change.
On window change, yes. Yeah, have you guys done? Yeah, so let's go back to our file and let's start with the very basic h1 tag. Wait, where is it? Yeah. In h1 tag, let's say very famous. Okay. Wait. Yeah, now okay. So let's start with header tag and okay, let's type code AI. Oops. Okay, so CSS is basically used to format your HTML page. There are different ways. You can either use style tag and define all the styles under it, or you can use inline styling. And third is you can actually link it to the external file. So first we'll see how to do inline styling. If I just go space, simply say align center. Wait. Yeah, you see? And like many times what happens is that like we are making something. Okay, first this is a paragraph tag, okay? We are making a web page and we don't know actually what we need to put. So for that, we use dummy text. And how to get that dummy text, you might have seen in many websites. Just type Lorem and press enter. It will give you this some dummy text. It is in, I guess, French or Spanish, I don't know. Lorem, yeah, what is it? And if you wanted, let's say, Lorem, and if I just want 15 words, I will type Lorem 15 and enter. It will only give 15 words. Okay. It will only give 15 words. Forget, like, let's just ignore this part. Just see this. Okay. After this, we can use br tag to add space in our code. Like it is very basic tag. So then there is a HR tag. What HR tag does is it just adds a line in your code. You see this line? This is because of the HR tag, okay? And there is then big. If you want to make your text big, inside a paragraph, if you just want to make one word, if you want to just like make it bigger, then you won't actually break the paragraph and make another paragraph and then again make third. So rather than making 3 paragraphs, you just use big tag inside a paragraph tag, and okay. I'm using it twice. Okay. See, you can see the difference in the font. Okay. Similar to big tag, there is a small tag. Okay. Now, like, let's just look at the this text. Okay. I'm adding a small tag once again. You see, it gets smaller. Now you see, big tag and small tag, though they are on a different line, but here they are like side by side. If you want to
end a line, we use br tag to put them on a different line. Okay. And there is sub soup. You know how we write water H2O? That 2 is in the subscript. So H sub, where is this? Yeah, sub. Sub. Oh, sorry, this is soup. Never mind. So you see this 2 is at the top, and if you want to make it at the bottom, just make that soup as sub, and it will come at the bottom. Okay. So when we are designing a web page, there are different sections. Like if let's open the Netflix website, I will show you. Okay, how many of you guys are from FY? Okay, so many. So this is a website. Its name is Class Connect, kjsitcc.versal.app. I will share you the link. These are like so many content like question bank, PYQ, notes, resources, everything. Okay, and the resources for this program you will also find it under the resources tab. If you go, this is a GitHub link where we will be uploading the code, and this is link to the WhatsApp group. I guess all of you are there. We will add the links here. Okay. There are also FY notes. You can take a look at it after the session. Okay. So what I wanted to tell you guys is basically, you see this Class Connect, this section is what you see when you open a page. If you scroll down, there is this image. Okay. If I full screen this browser, you will see actually they are side by side. And if I wait. If I make it smaller, the image actually comes down. This happens when you use div tag. Div tags are used to put your stuff in different blocks. So, and the reusability component I was talking about at the start is this. Basically, you see this our tips, our contributors thing. This is at the bottom of this page. Okay, if I go in about section, you will also see the same component. If I use let's say HTML here and just copy paste the code, I will have to change it twice. Since it is built in Next.js, I will just have to change it once. Okay. So this was basic thing. Yeah. Again, so let's see how we make div. Okay. I will add here. Okay. I will just copy paste the code. Okay. So now what happens is span is used if you want to make multiple changes. Like if you want to change background color, if you want to change the font color, then you can do it under span tag. Okay, just simply add the styling here. Just add the styling here. Okay, and it won't affect your actual thing. You see there are two different span tags, but text is one next to each other. And if you actually wanted to break the actually wanted to break the stuff, then we use div. Okay. Wait, I will do it again. Div tag. Okay. Enter. And if I say div1, come here. And again, if I go down, div2, let's say. You see, these are on different lines because there are actually different boxes containing this stuff. After this, we will see the list. Okay, there is one ordered list and there is unordered list. First, let's open an ordered list. We use ul tag to make unordered list, and each component is set by li. Okay, li. Let's say anything. Apple. By default, it has this circle. Bullet point as a circle. If you want to change it, go and just use type. You will see different types. Let's say square. Oops.
It says okay. You can actually see it, but like it has changed to square. You guys are following along, so you can better see it on your screens. Okay. And if I want to add more items, I just have to copy this. Oops. Copy this and keep pasting it. Okay. This was an ordered list, and then we will see ordered list. Same. Again, use li. Oh, sorry. All are following along in English now. सबको समझ में आ रहा है सबको समझ में आ रहा है Is everybody catching along? कोई tag भूल गए, कोई doubt है? If you guys want to ask anything, पूछ लो. कोई खाने नहीं वाला है मैं खुद ऐसा है मैं. You can ask any time question, कुछ भी डाउट आता है रिपीट कर दो, तुमको दिख नहीं रहा है, कुछ भी रहेगा बोलो. Any mind yourself. सेशन तुम्हारे लिए है, you can open speaker, ठीक है? Don't feel shy. If everybody is good, can continue. Okay? सब लोग thumbs up करो, आप सब लोग नींद में क्यों लग रहे हैं? Thumbs up थोड़ा करेगा। end of the day है, but थोड़ा सा please. थोड़ा like what? थोड़े से ठीक है, दिख चलिए. Okay, then we have ordered list. You see, one appeared directly. I don't have to put one. So if I just let's say copy this. And paste it 4 times, it will automatically number it. Okay. And if I just go, wait. And if I want to change type, okay, there are different types. You can either use ABCD or Roman numbers. If I change it to ABCD will follow. ABCD order will be follow. If I do it a Roman number, the Roman thing will be followed. Okay. After this, we will see HTML forms. So there is a form tag. I just added a HR tag, like just to keep things clean, I hope. Oh, sorry. Yeah, now if you see, look at the code, like it is like looking a bit messy, okay? The prettier extension I was talking about, what you have to do, if you have installed, just right click and select format document. It is now a bit more arranged and in my viewpoint, okay? This was the advantage of prettier extension if you have installed. Okay, cool. Not you, yeah. अच्छा ओ अरे मैं so div वाला okay. इसके होम पेज पे आए, right? You see class connect is showing and at the bottom this image is like appearing, okay? पर full screen है, class connect is on the left side and image is on the right side, okay? So why this is happening? Because this all content is actually a one box and this image is actually another box. And how we put this box using div tag. So we actually make site responsive for the mobile. When we do this, we have to like again code everything. To avoid that headache, we basically divide stuff into boxes, and when we like make it for mobile, rather than like coding from scratch, we just arrange the order of boxes, so it gets better for us to do it. So similarly, you see this, there is a span tag, okay? If I do span, it is span 1, span 2, it is showing on a one line, okay? Below this, there is div 1 and div 2. Wait, I will do it again. Div, okay? And if I say div 1, so comment kar do. Yeah, and if you guys want to comment, just press control and question mark. It will comment everything. Okay. So yeah, abhi div 1 hai, okay. If I want to put div 2, div tag and div 2.
You see, this div, it came on the next line. I have not done anything. It is similar to span, but since there are two different boxes and I have not defined how they're gonna work, it will like they will like just up come and like how do I say this? एक दूसरे के नीचे 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 आते रहेंगे. Okay? स्पैन लाइक वो कंटिन्यू होता रहता है. अगर पैराग्राफ है और एक वर्ड है, उसका अगर कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड मल्टीपल पैरामीटर्स चेंज करने हैं, वी यूज स्पैन टू डू इट. स्पैन कुछ लाइक एक्चुअली बॉक्स नहीं बनाता. इट रुको मैं बता रहा हूँ. ये एक डमी टेक्स्ट है, ठीक है. हमारे पास बहुत बड़ा हो गया है, छोड़ो. इसके अंदर अगर मैं स्पैन टैग डालता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर समझो मैं लिखता हूँ रेड, ठीक है. रेड यहाँ पे चला गया. इसको लाइक एकदम एंड में डाल रहा हूँ, ठीक है. ठीक है, यहाँ पे रेड आ गया. ओके, तो अगर मुझे इसको फॉर्मेटिंग करना है, ठीक है, तो मैं स्टाइल्स डालूंगा और जैसे कि कलर रेड. ओके, तो बस उसी का कलर रेड हो गया. वो एक कंटिन्यूस टेक्स्ट है और हमें इसको मल्टीपल पैरामीटर्स देने हैं. जैसे कि बिग स्मॉल क्या कर रहा था, वो छोटा मोटा कर रहा था टेक्स्ट को. अगर इसका कलर चेंज करना है, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, इसको कुछ टेक्स्ट डेकोरेशन देना है, इसके पीछे ग्रेडियंट डालना है, तो वो सब स्पैन के अंदर स्टाइल्स डाल के आप कर सकते हैं. Cool? ठीक है. After this, we'll move to the form section. Just simply press form and enter. Oops. ठीक है, इसके अंदर आएंगे तो there are basically two tags you will need. First is label. यहाँ पे आएगा label for ignore this. We will see this afterwards. Okay. Just label के अंदर if I put name, it will appear as a text. It will just appear as a text, okay? And below it, I am using input tag. This input tag is used to take input from the user, okay? There are different type of inputs you can take. Basically, like let's just say टेक्स्ट. ठीक है, तो यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा जिसके अंदर आई कैन टाइप एनीथिंग. ओके, इसके अंदर टेक्स्ट आ जाएगा. I copy this and let's just copy paste this. तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के इनपुट्स आप ले सकते हो. We saw text जिसमें text आता है, ठीक है. Then there is date. Date के अंदर you get this time picker, date picker. You can go to any year and any date. This date tag, like date component, is built inside HTML. You don't have to make it, okay. And there is a password field. So what's the difference between input text and password field is you can see whatever you are typing inside name, but you cannot see what are you typing inside the password field. And guys, ये फॉर्म वाला पार्ट जरा ध्यान दो. ये माइनर प्रोजेक्ट मेजर प्रोजेक्ट में आपको काम में है, इसलिए ये हैंड्स ऑन करो. आप कर रहे नहीं हो, मैं देख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ. रितेश फिर से पढ़ वापस या कुछ breaking the line. Yep. थोड़ा Slow. Yes, they are थोड़ा. Zen told me to finish it quickly. Sorry. Yeah, थोड़ा tags है उसको. Yeah, okay, cool. क्या हुआ?
फर्स्ट में चार लाइन में है ना हाँ वहीं पे है मोस्ट ऑफ अभी फॉर्म से चालू करो हाँ। फॉर्म इज इंपॉर्टेंट फॉर्म फॉलो अप करो व्हाटएवर इज मेकिंग वो सब इनपुट्स डालो एंड आई वांट टू सी इट इन एवरीबॉडीज स्क्रीन राइट ठीक है लेट्स जस्ट फर्दर क्या सीखा लेट्स मेक अ न्यू फाइल फॉर नाउ मैं कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत मैसी लग रहा है ठीक है फॉर्म में गया ये ऐसे क्या है हाँ अगेन एक्सक्लेमेशन मार्क you will see the first option press enter you will get the boilerplate code okay let's just name it forms ठीक है I have a blank page अब तक इतना हुआ है एवरीबॉडी इज ओपन फॉरवर्ड एचटीएमएल एंड इतना बॉयलरप्लेट कोड आया है डाल दिया है बॉयलरप्लेट कैसे आता है गाइस आई वांट एन आंसर फ्रॉम एनीबॉडी बॉयलरप्लेट कैसे आता है इन एचटीएमएल एक्सक्लेमेशन एंड एंटर एक बेसिक सेट ऑफ कोड आ जाएगा व्हिच इज अ कंप्लीट एचटीएमएल कोड विद टाइटल बॉडी एक्सेट्रा उसको बॉयलरप्लेट कोड बोलते हैं बेसिकली इट्स अ टेम्पलेट ऑन व्हिच यू कैन बिल्ड एचटीएमएल वेबसाइट्स तो हम लोग जो अभी स्टार्ट हो रहा है ये हमारा बेसिक जो हम लोग अभी जो लोग हमने एंट्री किया वेल जो लैब्स हो गया यू कैन सी एक सोमिया का ऑथेंटिकेशन होता है यू टाइप समथिंग एंटर में ऑथेंटिकेट करता है दोस आर कॉल्ड फॉर्म्स कुछ भी तुम टाइप करते हो वैल्यू डेटाबेस में स्टोर होता है तुम्हें कुछ इनपुट आउटपुट मिलता है दोस आर कॉल्ड फॉर्म्स तो अब नाउ वी आर बिगिनिंग विद कैसे हम आगे फॉर्म्स कंटिन्यू कर सकते हैं वी आर बिल्डिंग बेसिक फॉर्म्स राइट नाउ सो मेक श्योर यू आर विद दिस एंड कुछ भी लगता है फॉल एनीबॉडी कुछ भी डाउट लगता है टैक्स कंप्लीट नहीं हो रहा मुझे कुछ आ नहीं रहा यू नीड एनी स्मॉल डाउट लगता है बोलो ठीक है we are it's a fresh topic right now I have given seen कि थोड़ा सा ये हो रहा है so रितेश कंटिन्यू प्लीज अब कुछ भी लगता है प्लीज टेक अस या cool ये करने की जरूरत नहीं है आई एम जस्ट लाइक मेकिंग इट जब पेज खुले तो हमें समझे कि क्या करना है सीआई मत करो नेक्स्ट वन से फॉलो छोड़ो नेवर माइंड ठीक है बस लिख दो फॉर्म्स ओके ऑर्डर्ड लिस्ट में जब आइटम्स डालते हैं तो एप्पल बनाना व्हाटएवर जो डालोगे वो 1 2 3 4 वो ऑटोमेटिकली लिस्ट हो जाता है ये अलग अलग फॉर्मेट में कर सकते हो अनऑर्डर्ड लिस्ट में बुलेट मार्क्स पता है ना वैसे सर्कल आता है देख सकते हो तो वैसे आता है हाँ हाँ उतने डिफरेंस करूँ so have you guys made this then just write form and hit enter ignore this form action for now we will see this later so inside this we will take a look at two tags first is label and another is input okay if I label ये भी इग्नोर कर दो ठीक है फॉर है उसको इग्नोर कर दो इनसाइड लेबल टैग पुट एनीथिंग लेट्स से इफ आई से नेम ओके नेम अपीयर हो गया एंड फर्स्ट वाज लेबल सेकंड इज इनपुट टैग सो इफ आई जस्ट राइट इनपुट then I have to specify what type of input I am taking for now it is text so it will show you a text box okay you can type your name okay let's say if I type Radesh it will write it okay I'm just adding a BR tag okay
to like use a new line. Then again, there is another type of input. I will show you. What was it? Date. Oh, sorry. Achha, do one thing. Rather than making it again, just select this, copy it, and paste कर दो, ठीक है? Just name के जगह DOB कर दो, date of birth. And अगर मैं ये text को रुको, DOB आया, अभी वो input field दिखा रहा है, ठीक है? तो अगर मैं ये type को change करता हूँ to date, इंस्टेड ऑफ इनपुट फील्ड वो एक डेट पिकर दिखाता है और ये डेट पिकर HTML के अंदर बना हुआ है, हमें वापस बनाना नहीं पड़ता. If I open it and if I select today's date, see 25/9/2024. Cool. All guys are done. Please. No. Done. And there is third type of input, which is password. Now, if I type anything, let's say ABC, it is showing me I am typing ABC. For the privacy purposes, we have a different type. If I just write password and go here, now if I type anything ABC, it won't show what I am typing. It will just show dots. So this is a third type of input. Guys, done? So if we are taking a form, there is a very important thing which we will do at the end, which is to submit it. So rather than making a button, they have provided us inside input. If I just change type to submit, it will show me a submit button, and it is by default submit query. अगर वो डेटाबेस से कनेक्टेड होगा तो वो इनपुट आता है, उसके क्या एक्शंस आता है, वहाँ पे एपीआईस डालता है तो वो चला जाता है उधर. अभी दबाओगे कुछ नहीं होगा, अभी दबाओगे बस वो पेज रिफ्रेश होगा. If you can just click this button, it will just simply refresh the page because action defined नहीं है अभी के लिए.
Guys, done? So after forms, we will see form actions. Okay. Again, we will make use of form tag. ये दिख रहा है जो एक्शन है, वो एक्शन में डेटाबेस का लिंक है, तुम्हें जहां भी डेटा भेजना है वो ये एक्शन के अंदर डिफाइन होता है। ठीक है, इसमें एक चीज होता है कॉल्ड क्वेरी। ठीक है, फॉर नाउ अगर मैं कुछ भी डमी इनपुट ले लेता हूँ, ठीक है, फॉर्म एक्शन में जे क्वेरी करके लाइक एक टॉपिक है, इट इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हम बेसिकली एक सिंपल ओवरव्यू लेंगे। एक बना इनपुट टैग, ठीक है, टाइप में टेक्स्ट ही रख रहा हूँ, उसके आगे मैं एक और पैरामीटर ऐड कर रहा हूँ, नेम। ठीक है, और इसके नीचे एक बटन दे रहा हूँ, सबमिट बटन। ठीक है, अगर इसके अंदर मैं कुछ डालता हूँ, कुछ भी रैंडम डालता हूँ, जैसे रैंडम ही डाल देता हूँ, तो इट विल अपीयर। पर मैं यहाँ पे जब कुछ भी करूँगा वो कुछ नहीं हो रहा है, इसके अंदर कुछ डिफाइन नहीं किया, क्वेरी डिफाइन नहीं किया। क्वेरी सिंपली कैसे डिफाइन करते हैं इन HTML। अच्छा रुको एक सेकंड, इसको मैंने कुछ नहीं किया, बस सिंपली एक फॉर्म टैग के अंदर डाल दिया, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। अब अगर ये कंपोनेंट है, इतना बनाओ एंड जस्ट इसको एक और बार पेस्ट कर दो। ठीक है, तो अपने पास दो बार है। सो सेकेंड टाइम व्हाट वी विल डू इन नेम, वी विल जस्ट एंटर क्यू। ठीक है, अगर मैं क्यू डालता हूँ और फॉर्म है, ठीक है, फॉर्म किधर गया, फॉर्म में मैं जाके एक्शन डिफाइन करता हूँ। एक्शन के अंदर क्या डाल सकते हैं, गूगल सर्च, क्या आता है गूगल, ओके जस्ट लाइक google.com में। ठीक है, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, एंड जो पेस्ट होगा उसके आगे जस्ट टाइप सर्च। हमने इसको पहले बता दिया कौन से डोमेन में जाना है और क्या एक्शन करना है। ठीक है, यहाँ पे बदला कुछ नहीं है, पर हमारा जो नीचे वाला बॉक्स है इसके अंदर मैं कुछ भी टाइप करता हूँ, जैसे अपना ही नाम सर्च करता हूँ और सबमिट में क्लिक करने के बाद इट विल गो टू google.com और मेरा जो लिंक्डइन प्रोफाइल है वो ऊपर आ जाएगा। यू कैन सी 1.3 के फॉलोअर्स, यू कैन सी 1.3 के फॉलोअर्स, यू कैन कनेक्ट। थैंक यू। ठीक है, ये बस बेसिक था। अभी थोड़े से एडवांस टॉपिक पे जाते हैं, विच इज मीडिया क्वेरी। ठीक है, हाँ यहाँ पे अगर बिंग डालते हो तो भी चलना चाहिए है, कोई भी डाल। अच्छा बिंग पे नहीं चलता, उसका कुछ और होगा, गूगल चल जाता, रैंडम वेबसाइट, सॉरी। इसको फुल स्क्रीन कर दोगे? इग्नोर दिस पार्ट, ये फिलहाल के लिए काम का नहीं है। जो फंक्शनल पार्ट है बस उतना बना दो, बहुत होगा।
section tile. If I paste a Google Sheets link. Google Sheet has APIs. You need to put that API with when you make API, ठीक है? तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है. पहले डोमेन होता है, उसके आगे एक पासवर्ड की होता है, वो होता है, उसके आगे डेटाबेस का नाम ऐसे बड़ा सा लिंक होता है, वो इसमें डालोगे, डेटा डालोगे, चल जाएगा. So like it works, right? पर वो बहुत त्रास होता है. गूगल शीट में गूगल अकाउंट में जाके 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करके फिर उधर एक होता है यूजर कंट्रोल्स करके वहां पे जाके एपीआई इनेबल करना पड़ता है, फिर शीट्स में जाके सेटिंग, बहुत कुछ होता है. इतना हो गया गाइस? कर लो. Oops. So this would be the form action input you submitted. After submitting, what action you have to go? कौन सा दिन में? It is redirecting to why is it redirecting and how? अच्छा, ओके. किसको समझाना? वापस क्या नाम है इसका? हाँ, तो हमने फॉर्म पहले देखा था, ठीक है? फॉर्म टैग आता है, उसके आगे एक्शंस होता है, ठीक है? ये एक्शंस कैसे यूज करते हैं ये देख रहे हैं हम लोग अभी. इसके अंदर जाएंगे एंड सिंपली क्या, रुक ना, पहले बनाने तो देखो. ठीक है, अभी कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है? हमने इनपुट फील्ड्स देखे, वो इनपुट फील्ड्स वापस लिए और टेक्स्ट ही है, ठीक है? ये टेक्स्ट के आगे आई एम एडिंग वन मोर पैरामीटर विच इज नेम. तो जब ये नेम ऐड करते हैं तो जो क्वेरी कॉल करना होता है वो इसके अंदर आ जाता है. कुछ नहीं, बस क्यू दबा प्रेस करना होता है. क्यू के आगे जाके यहाँ पे एक इनपुट फील्ड आ गया, ठीक है? इसको सबमिट करने के लिए हमने देखा था कि इनपुट में एक ऑप्शन होता है सबमिट करके, जिससे कि सबमिट बटन आता है. तो वही वापस कर रहे हैं सबमिट. तो हमने एक इनपुट टैग इनपुट फील्ड बनाया, उसके आगे एक सबमिट बटन आ गया, ठीक है? तो वो क्वेरी तो कॉल कर रहा है, बट हमें इसको अभी तक बताया नहीं है कि क्वेरी कॉल करके करना क्या है, वो क्या करना है, हम वो एक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं. जैसे कि मैंने कॉपी किया था, रुको. हाँ, हम इसको बोल रहे हैं google.com पे जाओ और /search google.com पे जाके सर्च करो. अब क्या सर्च करना है वो हम इधर देंगे. और अब हम हमारा इनपुट जब डाल के कंप्लीट हो जाएगा, कोड है दिस टाइम, कोड या डाला एंड इफ आई डू सबमिट क्वेरी इट विल गो टू google.com. यू सी google.com/search और इसके आगे क्यू आया है. वो क्यू ये क्वेरी से जो हमने कॉल किया था वो क्वेरी है, और क्वेरी के आगे हमने जो इनपुट डाला था वो आ गया, ठीक है? So after forms you will see media query, ठीक है? I am making a new file. So guys, so okay, this is a website, ठीक है? This is my mini project, okay? तो इसमें क्या हो रहा है बेसिकली कि इन द बैकग्राउंड देयर इज अ इमेज ऑफ अ ग्रेडियंट, ठीक है? एंड देयर इज अनदर थिंग, इफ आई रीलोड इट, पीछे एक ग्रेडियंट का इमेज अलग से है एंड टॉप ऑफ इट एक वीडियो प्ले हो रहा है.
तो ये मल्टीपल लेवल्स ऑफ मीडियाज है, मतलब एक इमेज है, दूसरी इमेज है एंड तीसरा वीडियो प्ले हो रहा है, ठीक है। ये देख रहे हो एक पूरे पेज के ऊपर एक कंटिन्यूअस इमेज है जो कि ग्रेडियंट है, मिनी प्रोजेक्ट। तो हम देखेंगे कि ये इसको इंपोर्ट कैसे करता है HTML के अंदर। नॉट एग्जैक्टली दिस, थोड़ा सिंपल बताएंगे। वापस बॉयलर प्लेट कोड कॉल करेंगे और एक सिंपली H1 टैग के अंदर मीडिया लिखेंगे, ठीक है। एंड राइट क्लिक करो, ओपन इट विद लाइव सर्वर, यहाँ पे खुल जाएगा, ठीक है। क्यूटी है ना। तो अगर हम इमेज इंपोर्ट कर रहे हैं, सो लाइक वी विल ऑब्वियसली नीड अ इमेज। तो मैं कुछ नहीं कर रहा, ये जो फाइल डायरेक्टरी है, मैंने एक इमेज को कॉपी किया है, मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। अगर मैं इसको फाइल एक्सप्लोरर में दिखाऊं, रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, तो अरे यहाँ पे खुल गया। तो ये कुछ नहीं, ये HTML आपका जो फोल्डर होगा उसमें मल्टीपल फाइल्स है, एक सिंपल इमेज है, ठीक है। वापस इधर मिल गई। ठीक है, अगर मैं इमेज दिखाऊं आपको तो ये है कोड AI का लोगो है, ठीक है। तो अगर हमें इसको इस पेज के ऊपर कॉल करना है तो सिंपली इसको बंद कर देता हूँ। हमने इमेज को बुलाया जहाँ पे हमारे फाइल सेव है, ठीक है। आई विल जस्ट से इमेज एंटर। तो ये जो सोर्स आता है, सोर्स के यहाँ पे हम वो फाइल का डेस्टिनेशन डालेंगे, ठीक है। वो कैसे डालते हैं, एक फुल स्टॉप और उसके बाद बैकस्लैश दबाओगे तो जितने भी फाइल्स होते हैं ना वो डायरेक्टरी में सारे खुल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एट द सेकंड पोजीशन यू विल सी कोड AI फैम इमेज। मैं इसको हिट एंटर करता हूँ तो यहाँ पे खुल जाएगा। इसके बाद यू विल सी देयर इज अ ALT व्हिच इज अल्टरनेट। मतलब समझो अगर इमेज में कुछ प्रॉब्लम है, ये PNG फाइल है, पर मैं अगर समझो इसको JPEG लिख देता हूँ और ऑल्ट में अगर मैं लिखता हूँ कोड AI लोगो, तो एक तो इमेज में प्रॉब्लम है, कुछ भी हो सकता है। इमेज वो लाइक फाइल एक्सप्लोरर में प्रेजेंट नहीं है, गलत इंपोर्ट किया, तो इंस्टेड ऑफ इमेज वो टेक्स्ट दिखाएगा जो अल्टरनेट है, तो हमें समझ सकेगा साइट के ऊपर देखेंगे तो एग्जैक्टली किस कंपोनेंट में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसको वापस PNG कर देते हैं। नाउ यू सी ये बहुत बड़ा हो रहा है, मतलब हमारे व्यू पॉइंट के भी बाहर जा रहा है। सो व्हाट वी कैन सिंपली डू इज कि इसका विड्थ ज्यादा जा रहा है, ठीक है। तो इस HTML में एक टैग होता है विड्थ करके, ठीक है। विड्थ डाल देंगे और इसको तुम लोग कुछ भी डाल सकते हो, जैसे कि इफ आई एंटर 200 तो 200 पिक्सल है। अब पिक्सल लिखो नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ता, वो छोटा हो गया, ठीक है। आपको अगर कोई भी इमेज चाहिए होगा, जस्ट सर्च एनीथिंग, कार्ड्स, इमेज में जाओ, इसको डाउनलोड कर लो और फाइल डायरेक्टरी में डाल दो। कोड देखो,
उसको समझाओ, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? आया, वापस बताओ। ठीक है, वापस बता रहा हूँ। इधर आके बता। So after image we will see how to import a video. ठीक है, तो जैसे इमेज के लिए IMG था, वीडियो के लिए VID करके होता है वीडियो। अब इसका सोर्स, अगर कोई भी वीडियो, ठीक है, मैंने एक वीडियो लिया और इसके डायरेक्टरी में वापस जाके डाल दिया। ठीक है, अगेन सेम थिंग, डॉट बैकस्लैश, सारे फाइल्स आ गए, हमारा वीडियो लास्ट वाला है, वीडियो डॉट MP4, इसको सिलेक्ट किया, हाँ, वीडियो इधर नीचे प्ले हो रहा है। ठीक है, इसका बहुत ज्यादा विड्थ बढ़ा है, तो व्हाट वी विल डू, बेसिकली सेम थिंग, इसका विड्थ डालेंगे, लेट्स से 500 डाल दिया। ठीक है, अब आप देख रहे हो वीडियो तो आ गया। अगर मैं वीडियो यहाँ से दिखाऊं कैसे चलेगा? चलो नेवर माइंड, बेसिकली क्या हो रहा है, वो वीडियो है पर उसका बस थंबनेल दिख रहा है, तो इसको लाइक प्ले करने के लिए हमें इसमें कंट्रोल्स डालने पड़ेंगे। ठीक है, तो क्या करना पड़ता है, स्पेस डालो, कंट्रोल्स, आपको देखेगा यहाँ पे कंट्रोल्स है। ठीक है, हमें क्या कंट्रोल करने हैं कि ये प्ले होते रहे, तो प्ले होने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑटो प्ले। ठीक है, यहाँ पे जाओगे, ये प्ले होने लगेगा। अब इसका ऑडियो भी है, ये फिलहाल म्यूटेड है, पर इसको अगर मैं ऑन करता हूँ, मतलब वीडियो कोई ऑडियो नहीं है, पर अगर साइट खुलेंगे और नमस्कार, वेलकम टू टेक्निकल गुरुजी ऐसे आवाज आने लगा तो बहुत वियर्ड लगेगा, तो इसलिए यूजुअली इसके साथ हम एक और चीज डालते हैं, म्यूटेड।
म्यूटेड, ठीक है। और ये जब देखा 12 सेकंड हो गया, वो वहां पे रुक गया। पर अगर आप वो साइड के ऊपर जाओगे तो ये कैसे कंटिन्यूसली प्ले होता रह रहा है। तो ये प्ले होते रहने के लिए वो एक लूप में है, तो बहुत अच्छी बात है, उन्होंने सिंपली इधर एक लूप लगा दिया, कुछ नहीं, बस लूप टाइप कर दिया। अब भले 12 सेकंड हो जाए, वो कंटिन्यूसली प्ले होते रहेगा। देखा, वीडियो वापस चालू हो गया। तो एक 3 मेन कंट्रोल्स होते हैं, वो डालने होते हैं। ट्राई करो। Guys, similar part we have to do with video. What we have done with English now. Similar part we have. Just try it once. वीडियो डाउनलोड कैसे भी कर लो, डाउनलोडेड फ्रॉम इंटरनेट यार, कैसे भी कर लो। Download any video from Google. You can try it. आई होप सो। Now we do the हाँ, next thing. थैंक यू। What? It's for them. वाओ, अमेजिंग, थैंक यू ततीक्षा। Let's just keep it zoom. बस ये just word brush ताकि जो भी आगे का text जा रहा था वो भी coefficient ततीक्षा, they might think न्यू लाइन कहाँ से आया, तो उसको नॉर्मली रहने दो, हो सकता, ठीक है, उनको पूरा दिखना चाहिए। ठीक है, देखो। But there's उनके videos download नहीं हो रहे, तो उनको link के through बता दो। हाँ, तो इसके लिए नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। आप अगर YouTube पे जाओगे, समझो तुम सबके पास video download नहीं है ना, any of you follow my link, how do you? ठीक है, ये एक YouTube चैनल है, मेरा ही है। तो ऐसे कोई भी वीडियो के ऊपर जाओगे, तो यहाँ पे जब राइट क्लिक करोगे तो कॉपी इम्बेड कोड करके ऑप्शन आता है, 4th ऑप्शन है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, अगर मैं इधर वापस जाऊं, तो ये जो चीज था ना, आई फ्रेम करके एक चीज होता है। आई फ्रेम क्या होता है कि कोई भी एक्सटर्नल चीज है जो हमारे वेबसाइट का कंपोनेंट नहीं है और हमें उसको वापस स्क्रैच से भी नहीं बनाना है, सो वी यूज आई फ्रेम, ठीक है। तो इसके अंदर वीडियो आ सकता है, वेबसाइट आ सकती है, इमेज आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर यूट्यूब वीडियो को पेस्ट करना होगा तो यूट्यूब में वही ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे जाओ, कॉपी एम्बेड कोड करो, कम बैक टू योर कोड एंड जस्ट सिंपली पेस्ट इट, ओके। और जब मैं यहाँ पे जाता हूँ तो ये दिखने लगेगा इसका वेट। बाकी के कंट्रोल जो यू ऑटो प्ले म्यूटेड हो तो अप्लाई कर सकते ऑटो प्ले नहीं होगा सर, वीडियो के ऊपर होता है। मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, कुछ नहीं, बस थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, वो यहाँ पे दिखना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा छोटा हो गया, ठीक है। ये आई फ्रेम के बाद हम आई फ्रेम ऐसे कुछ भी करने लगे तो सिक्योरिटी रिस्क आ सकता है, जिसका हम आई फ्रेम यूज कर रहे हैं। लेट्स से मैंने एक पेज बना दिया इंस्टाग्राम का, लेट्स से जो जैसे भी आता है, लॉगिन पेज आता है, उसके बाद पोस्ट दिखता है, वो मेरे वेबसाइट के अंदर चल रहा है, पर यूजर को तो बस इंस्टाग्राम का पेज दिख रहा है, राइट। तो ऐसे हो सकता है कि मैं यूजर का डेटा चुरा लूं, इसलिए फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस जो बड़ी कंपनीज होती है, लेट्स से फॉर गूगल, तो इफ आई ट्राई आई फ्रेम और मैं सोर्स में अगर गूगल का यूआरएल डाल दूं, तो यहाँ पे नीचे
क्या हुआ इसको? हाँ, यहाँ पे नीचे देख रहे हो कुछ भी नहीं आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे ये डाला है। इसका मतलब ये होता है कि गूगल इसको सपोर्ट नहीं करता। कोई एक और एग्जांपल है, जैसे गूगल एक सर्च इंजन है, वैसे एक डक डक गो करके एक सर्च इंजन है। अगर मैं उसका भी कॉपी करके यहाँ पे डालने का ट्राई करूँ, देख रहे हो फायरफॉक्स कांट ओपन दिस पेज, क्योंकि उन लोगों ने वो रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ होता है। ठीक है, ये ट्राई करने का जरूरत नहीं है, बस बेसिकली बताने के लिए था। ठीक है, तो HTML यहाँ पे खत्म होता है, जितना नेसेसरी था। आगे भी है पर लगेगा नहीं, हमें नहीं लगेगा ना। तो इसके बाद लेट्स जंप इनटू CSS। ये HTML फोल्डर है, मैं कुछ नहीं, बस थोड़ा ऑर्गेनाइज रखने के लिए एक नया फोल्डर बना रहा हूँ। आप सेम डायरेक्टरी में भी बना सकते हो, डजंट सेम मैटर। फोल्डर में ही बना। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है एक न्यू फाइल का है, तो उसके ऊपर क्लिक करो एंड कुछ भी नाम दे दो उसको, जैसे कि क्या दो, 1.css, कुछ भी नाम दो, .css करके सेव कर दो उसको। गाइस जस्ट लिसन टू रितेश। CSS आपका हो गया क्या? फाइल बना लिया हो गया? फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा गाइस? .css। Everybody select the file. So like at the beginning as I was saying कि CSS को यूज करने के 3 टाइप्स हो सकता है। फर्स्ट इज एक्सटर्नल। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, ये क्या लिखा है वो जाने दो, पर मैं इसको कॉल कर रहा हूँ external.css। मैं इसके ऊपर अगर क्लिक करता हूँ तो ये देख रहे हो, ये साइड वाला फाइल खुल रहा है, मतलब ये एक एक्सटर्नल CSS फाइल से लिंक्ड है। ठीक है, उसके बाद होता है इनलाइन, कि मतलब आपने एक टैग डिफाइन किया, ठीक है, उस टैग के आगे ही आपने स्टाइल्स डाला और क्या क्या चाहिए वो उसके अंदर डाल दिया। ये सेकंड टाइप होता है। एंड थर्ड टाइप इनलाइन का मतलब क्या होता है कि एक टैग आता है स्टाइल्स, उसके अंदर आप CSS लिखोगे तो वो रेंडर हो जाता है। CSS कोई एक अलग लैंग्वेज नहीं है, इट इज अ पार्ट ऑफ HTML। लाइक जब उसके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं हम उसको बेसिकली फॉर्मेट करने के लिए यूज करते हैं। वीडियो होगा अगर .mp4 फाइल होगा तो लूप में चलेगा, पर अगर मैं YouTube का वीडियो उठा के डालता हूँ उसके iframe के अंदर तो नहीं चलेगा। तो आप क्या कर रहे हो? हाँ, समझा नहीं मुझे डाउट। बस टाइप बता रहा हूँ, ये टाइप पर करोगे, टाइप बता रहा हूँ। टाइप्स ऑफ सीज होते हैं, तुम किधर टाइप कर सकते हैं सेम फाइल में अलग फाइल में। ये वैसे एक्सटर्नल टाइप है, मतलब अलग से फाइल बनाना रहता है CSS। मैं बोल रही हूँ और इसमें मैं आइटम लगाऊंगी तो पे आइटम
What is CSS? CSS उसका फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। तो स्टाइल शीट्स का ऑब्वियसली मतलब होता है इट इज यूज्ड फॉर स्टाइलिंग, ठीक है। तो हम लोग 3 टाइप देख रहे थे उसका, वापस बताओ। What is the full form? बताओ। Continue. ठीक है, तो ये बेसिकली 3 चीजें होती है, 3 वेज होते हैं इंपोर्ट करने के। वी यूजुअली प्रेफर कि वो एक्सटर्नल में चले जाए, क्योंकि आप देखोगे जैसे कि तो completely different file बना रहे हो तुम्हारे CSS। हाँ, क्योंकि इसका कोड का लेंथ बढ़ जाता है। अगर मैं स्टाइल्स इधर ही डालूं तो देख रहे हो इतना पार्ट स्टाइल्स टैग में चला गया, उसके नीचे बाद में जाके HTML आ गया। अगर वो अलग अलग होगा तो ये बहुत बड़ा कोड है, मतलब एक पूरे पोर्टफोलियो वेबसाइट का पेज कोड है। तो ये अलग अलग रहता है, तो इट इज इजी कि अगर समझो मुझे सिंपली जाके हेडर का चेंज करना, तो मैं यहाँ पे जाके मुझे सिंपली हेडर दिख रहा है तो ज़्यादा नीट रहता है, इसलिए भी यूजुअली प्रेफर एक्सटर्नल फाइल्स, ठीक है। तो अभी वापस आ जाता है। हाँ, तो ये ब्लैंक पेज है। यहाँ पे फर्स्ट एक सेकंड रुको। तो एज आई सेड HTML कोई अलग CSS कोई अलग लैंग्वेज नहीं है, वो HTML के साथ बनता है। तो बस CSS का कोड लिख दोगे उसका कुछ मतलब नहीं होता। CSS फाइल के साथ हमें एक HTML फाइल भी लगता है, तो इसके साथ कोई भी फाइल बना दो। हमने CSS डाला ही नहीं। What is the use? हम क्यों डाल रहे स्टाइल्स हैं? Explain and pattern लेना है। करके दिखाता हूँ, ठीक है। अगर मैं कुछ भी इसको लाइक फाइल का नाम कुछ भी दे दो, फर्क नहीं पड़ता। इफ आई से abc.html, अगेन ठीक है, abc.html, ये HTML फाइल आ गया, ठीक है। बॉयलरप्लेट कोड कॉल किया, इसके अंदर अगर हमें ये डालना है एक्सटर्नल CSS डालना है, तो टैग होता है लिंक, ठीक है। लिंक स्टाइल शीट्स, ये स्टाइल शीट्स आ रहा है क्योंकि जो जावास्क्रिप्ट का फाइल होता है आप वो भी बुला सकते हो, वहाँ पे स्क्रिप्ट आ जाएगा उस टाइम पे, ठीक है। href हमें वो फाइल को कॉल करना, तो सेम कुछ नहीं करना, वापस डायरेक्टरी खोलना है, यहाँ पे आ गया 1.css, उसको कॉल करना है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे समझो मैंने h1 टैग लिया और सर्च किया हेलो, ठीक है। मैं कुछ नहीं, इसको लाइव सर्वर में वापस खोला, यहाँ पे हेलो आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जाके इसको कैसे करते हैं कि डिफरेंट टाइप्स होते हैं। अगर जैसे H1 टैग है, आपके साइट में जितने भी H1 टैग है उसको अगर चेंज करना है तो सीधे लिख दो H1 और कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। और यहाँ पे कलर लिख दो, लेट्स से मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ, मतलब फॉर नाउ लेट्स से रेड हो गया ये। तो अब मैं अगर यहाँ पे वापस आता हूँ और इसको अगर कमेंट कर देता हूँ या फिर निकाल देता हूँ, तो पेज पे जाके देखोगे वापस ब्लैक हो गया, हमने इसको रेड किया था। इसका कमेंट का कंट्रोल क्वेश्चन मार्क ब्लैक बैकस्लैश जो कुछ भी है, ठीक है। तो मतलब हमारा फाइल यूज हो रहा है। अब यहाँ पे मैं जितने भी H1 टैग दूंगा, नेवर माइंड, हाँ
हाँ तो पहले एक एचआर टैग डिफाइन किया, फिर एक ब्रेक है, उसके बाद वर्ड है। तो देख रहे हो दोनों का कलर चेंज हो गया, वापस जाके इसको डिफाइन नहीं करना पड़ा। बट अगर वर्ड की तरफ पे एक चीज होता है क्लास, अगर मैं क्लास हेडर करता हूँ, ठीक है, और अगर क्लास का डिफाइन करना होगा तो हम एक कुछ नहीं बस एक डॉट डालते हैं और जो कुछ भी इसका टैग होता है, जो कुछ भी हमने क्लास नेम दिया था वो डालते हैं। और अगर मैं यहाँ पे जाके कलर ग्रीन डालता हूँ, इसका चेंज हो गया, बस वो उसको इसको अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये दो वेज थे। थर्ड होता है आईडी, पर वो इतना ज्यादा यूज नहीं होता, वी कैन स्किप इट, ठीक है। तो हमने आज HTML एंड CSS कवर किया। CSS के थोड़े एडवांस टॉपिक है, वो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो उसने तुमको फॉर्म्स बना सकता है HTML में, बेसिक ग्राउंड अप, यू गॉट एन आइडिया कि HTML क्यों यूज होता है, राइट, टू मेक वेबसाइट, कमिटिंग वेबसाइट। HTML तुम स्ट्रक्चर बना रहे हो, आउटलाइन बना रहे हो, मेरे को ये चीजें चाहिए, मेरे को इमेज चाहिए, वीडियो चाहिए, ये टेक्स्ट चाहिए, अपना पोर्टफोलियो में स्ट्रीम भी करना है, तो यू ऑल कैन वॉच दैट, स्ट्रीम हो रहा है, I mean they can also watch, right, so you all can also watch। तो वो तुमने सीखा, राइट, अगेन HTML में तुमने इमेज डाला, वीडियो का लिंक डाला, फॉर्म बनाया, फॉर्म का इंपॉर्टेंस सीखा, फीडबैक चाहिए तो तुमने कोई वेबसाइट बनाई, कैसी बन रही है, लोगों को पसंद आ रही है, नहीं आ रही है, फीडबैक्स, दैट इज व्हाई फॉर्म्स आर रियली इंपॉर्टेंट। वो तुमने बेसिक सीखा, ऑल्दो ये टाइम पिंच पे कम चीज सीखी, लेकिन सीखा। तुम सबका फर्स्ट टाइम है, थोड़ा ओवरवेलमिंग हो सकता है, पर तुमने VS कोड बहुत लोगों ने सीखा डाउनलोड करके, हाउ टू कोड ऑन इट, उसमें बॉयलरप्लेट कैसे आते हैं, बहुत सारे शॉर्टकट सीखे होंगे, राइट। तो आई कैन अंडरस्टैंड FI में थोड़ा ओवरवेलमिंग होगा, थोड़ा पेस फास्ट लगा होगा, तो नेक्स्ट सेशन में हम मॉडरेट करेंगे उसे, एंड ऑल्सो इससे रिलेटेड नहीं होगा वो मोस्टली। अगला सेशन मोस्टली जावास्क्रिप्ट के ऊपर है। जावास्क्रिप्ट के जो भी बेसिक्स रहेंगे, एडवांस रहेंगे, वो अगले सेशन में रहेंगे। और मैं यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको बता दूं कि जो भी टॉप 5 स्टूडेंट्स रहेंगे जो कि हमें लिंक्डइन पे शेयर करेंगे हमारा कोड AI का, और ये भी हमको टैग अगर करेंगे ना, तो टॉप 5 स्टूडेंट्स जो भी रहेंगे उनको यूडेमिटी कोर्सेज हम फ्री में देंगे। मैं बता दूं तो जो भी लिंक्डइन अकाउंट्स बनाया तुम लोगों ने? लिंक्डइन पहले बनाओ, बेसिक बना लो, नाम वाम डाल दो, लॉगिन करके रखो। तुम अभी फिलहाल कम कोड किया रहेगा, आगे के दिन में तुम लोग और कोड करोगे और सीखोगे, प्रोग्रेस का पोस्ट बना सकते हो, एंड देन एज ही सेड टॉप 5 विल गेट अ यूडेमी कोर्स फॉर फ्री, which are mostly paid 10,000। हाँ, मिनिमम 500 देना ही पड़ता है तुम्हें यूडेमी के कोर्स के लिए। तो आई होप यू ऑल गॉट अ जिस्ट ऑफ HTML, थोड़ा सा CSS समझा होगा, उसका फुल फॉर्म पता चला होगा, उसके टाइप्स पता होंगे, और वो क्यों यूज होता है वो पता चला होगा। टुमारो विल बी कंटिन्यूइंग विद जावास्क्रिप्ट। जैसे तुम लोग ने C++ जावा लैंग्वेजेस सुने होंगे, उसमें वेरिएबल्स होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, वो सब सीखेंगे। Like HTML CSS is body, then JavaScript is known as the brain। जो भी एक्शंस होते हैं, मतलब जैसे कि अगर मैं मल्टीपल टैब्स क्लोज कर रहा था, कभी-कभी पॉपअप आता है ना, डू यू वांट टू क्लोज दिस टैब, और वो जब सबमिट बटन क्लिक करते हैं तो आता है ना कि क्वेरी सबमिटेड, जो पॉपअप्स वगैरह आते हैं वो सब जावास्क्रिप्ट के अंदर आता है। मैं सबमिट करके क्या होगा आगे, मैं वो बटन क्लिक करूंगी तो क्या होगा, वो तुम जावास्क्रिप्ट से करोगे, वो आगे सीखेंगे। एंड आई होप इट वाज कम ओवरवेलमिंग होता जाएगा, एंड आई होप तुम लोग को पसंद आया होगा, एंड वी विल मीट अगेन टुमारो एट द सेम टाइम। ऑल्सो आज वो स्पोर्ट्स प्रेशर था, इसके लिए SY वाले भी Yes. काउंसिल में चले गए, FY वाले भी काउंसिल में चले गए। नेक्स्ट टाइम कैपेसिटी 60 है। हमको एकदम लास्ट मोमेंट पे पता चला कि क्लैश हो रहा है तुम्हारा रिवील एंड दिस इवेंट, बट आई थिंक अगले दिन नहीं होगा ना, शायद से नहीं होगा। अगर आपके फ्रेंड्स भी हैं, आपको अच्छा लगा तो आप उनके साथ दे कैन जॉइन इन फ्रॉम एनी डे। और जितना भी HTML CSS आज पढ़ा है, घर पे जाके एक बार प्रैक्टिस करो। तुमको सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे, वो हम ग्रुप पे सब शेयर कर देंगे। रिसोर्सेज मिल जाएंगे सब। Videsh will share you all the resources. You can also contact him. As an order for yourselves for completing at least the first day of the session। कितने दिन हुआ तुम लोग को कॉलेज आके? 5।
and now you're so well versed with this. So like very good start, a very good head start, and I hope you all continue and like this session. Okay, guys, we can discuss. So we can wrap it up. Bye, guys. Thank you. So much. Get home safe. कोई बोरेवली में रहता है ना, कोई बोलता है, अभी बहुत हो जाएगा।